Hello dear students, in this video we will learn about Coulomb's law. As we have learned about electric charge, types of charges and basic property of charge. हमने देखा है कि charges are of two types, positive charge and negative charge. Basic property of electric charge is that like charges repel each other while unlike charges attract each other. Now, question is arises with what magnitude two charges attract or repel each other. To solve this problem, Coulomb gave his experimental law known Coulomb's law. By using Coulomb's law, we can find magnitude of electric force between two charges. Here, we consider that two charges Q1 and Q2 both are point charge, both are at distance small r. Then, according to Coulomb, electric force between these two charges is directly proportional to product of their magnitude. That is, it is clear that as magnitude of charges is larger, then electric force is also larger. If magnitude of given charges is small, then electric force on the charges will be small. And another point according to Coulomb is that electric force between these two charges is inversely proportional to square of distance between them. That is, if we increase the distance between two charges, electric force goes on decreasing. When we combine these both results, then we have A proportional to Q1 Q2 upon R square. For removing this proportionality sign, we have to put here any constant, and we put here proportionality constant small k, that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's law. F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is proportionality constant, known Coulomb's constant or electrostatic force constant. Small k also written as 1 upon 4 pi epsilon naught. This is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square. That is the value of this constant, Coulomb's constant, is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square. Hence, this result may be written as F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is result between electric force. This is result between two charges when both are apart at particular distance in air or vacuum. Epsilon naught is known. Here this epsilon naught is known permittivity of free space. Epsilon naught is known permittivity of free space. Permittivity of free space. Its value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square upon Newton meter स्क्वायर। अब हम
यहां पर समझेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी के बारे में हम समझें कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वह कैरेक्टरिस्टिक है जो कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट करता है। परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मीडियम दैट अफेक्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन गिवन इलेक्ट्रिक चार्जेस when the value of permittivity is larger then electric force between two charges is smaller and vice versa। यह पर्टिकुलर रिजल्ट तब के लिए है जबकि दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हैं। अब हम सब मान ले रहे हैं कि दो चार्जेस या दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने बना दिया है। अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दे रहे हैं तब के लिए रिजल्ट के बारे में हमें समझना है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मींस एनी इंसुलेटिंग मीडियम एज पेपर, वैक्स, ऑयल, वुड एक्सेट्रा। जैसे ही हम इन दोनों के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिजल्ट हो जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट K को हम केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन को हम पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम है, जबकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तब यह रिजल्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से क्लियर है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू उतनी ही रिड्यूस कर दी जाएगी। सपोज एज कोई हमने दो चार्ज ले लिया और ये दो चार्ज एयर में रखा गया है, यह Q1 और Q2 है, दोनों को एयर में रखा है। दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू सपोज एज 80 न्यूटन है। अगर इन दोनों के बीच हम कोई वाटर भर दें तब फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाता है और फोर्स की वैल्यू हो गया 1 न्यूटन। दैट इज इस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी जो है 80 है, जो कि फोर्स को 80 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है। यहां जो ये कैपिटल K है, यह कैपिटल K कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इस कैपिटल K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और किसी मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होता है और जितनी ही K की वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम होगी। दैट इज यहां पर कुछ वैल्यूज हम देखेंगे, जैसे कि एयर या वैक्यूम के लिए अगर हम एयर या वैक्यूम ले अगर हम लेकर के चलते हैं तो K की वैल्यू 1 होती है। जबकि किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए, किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेकर के चलते हैं तो K इज ग्रेटर देन 1। बट फॉर एनी कंडक्टिंग मीडियम, for conductor K is very large and nearly equal to infinite। इस तरह से ये कूलॉम्स लॉ रहा। अब हम कूलॉम्स लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच कुछ कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे कि कूलॉम्स लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट होगा comparison between Coulomb's law and Newton's law of gravitation
जैसा कि हमें पता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि किसी भी दो, इस यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। जिस किसी भी फोर्स से अट्रैक्ट करता है वह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और न्यूटन ने उस फोर्स के बारे में बतलाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to square between both object. That is AF is equal to Gm1 m2 upon r square. यह जो है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब यहां से हमें इस टॉपिक में इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच कंपैरिजन करना है, देखना है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। तो पहली पॉइंट हम लेकर के चलेंगे। क्लियर है दोनों के रिजल्ट से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दैट इज हम कह सकते हैं कि बोथ मींस gravitational force and this electric force both follow inverse square law, both follow inverse square law। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी है। दूसरी पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या मीडियम है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के बीच कैसा मीडियम है। अगर हम एयर में रखे हैं तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और दो चार्जेस के बीच जैसे ही हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर फोर्स की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है। दैट इज हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स Fi डिपेंड्स अपॉन मीडियम placed between charges, while gravitational force does not depends upon medium placed between objects। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट स्ट्रेंथ के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ क्या होता है। यहां से क्लियर है, हम जानते हैं कि कैपिटल G is universal gravitational constant and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square। capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square। Value of this constant is very small, while value of this constant small k is larger. That is, electric force is much stronger than gravitational force। अब हम ये फोर्थ पॉइंट लेकर के चलेंगे। फोर्थ पॉइंट मीन्स both forces, electrostatic force and gravitational force, both are conservative, both are central force। यानी कि लिख सकते हैं कि both forces are conservative। हमने ये पढ़ा, हमने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11th में जिक्र किया। हमने पढ़ा है कि द फोर्स बाय विच और अगेंस्ट विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन if does not depends upon path followed then force is conservative and if work done depends upon path followed then force is non conservative। for example, friction force is non conservative force, but here gravitational force and electrostatic force both are conservative force।
बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स दो ऑब्जेक्ट या दो चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के एलोंग ही ये फोर्स काम करता है। जैसे अगर ये एक प्लस चार्ज है, यह भी अगर प्लस चार्ज है, तो यह प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन इस रिपल्सन का डायरेक्शन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के एलोंग ही होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो अट्रैक्टिव फोर्स भी इस लाइन के एलोंग ही काम करता। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है कि सेंट्रल फोर्स ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे कि दोनों जो फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई सिस्टम कई चार्जेस से मिलकर के बना हो, तो किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स अलग अलग चार्जेस के कारण उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जिक्र हम आगे टॉपिक में कर रहे हैं और क्लास 11th में भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। तो अब हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। ये स्केलर फॉर्म था, मींस हमने हर जगह केवल मैग्नीट्यूड का बात किया है, डायरेक्शन की बात हमने नहीं किया है, जबकि हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अब हम वेक्टर फॉर्म में लेकर के चलेंगे कूलॉम्स लॉ को। Now we will see Coulomb's law in vector form। अब हम कूलॉम्स लॉ के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे। यहां हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस है। ये भी याद रखना है कि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है और लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। दोनों, चाहे कूलॉम्स लॉ हो या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। हम यहां कंसीडर कर ले रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, यह Q1 और Q2, दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर अपार्ट है। तब Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज दैट Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, दैट इज इस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। और हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा और ये डायरेक्शन हम दिखलाएंगे और ये हम लिखेंगे इस तरह से, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब दोनों के बीच हम डायरेक्शन को लेकर के चलेंगे, पर्टिकुलर ये डायरेक्शन या पर्टिकुलर ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज कर ले रहे हैं और अगर हमें डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर लेके चलना हो तो हम ये यूनिट वेक्टर लेकर के चल रहे हैं R21 है। और Q1 से Q2 की तरफ अगर डायरेक्शन को शो करना हो तो हम लिख सकते हैं R12F। अब लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, that is F12 vector is equal to, according to Coulomb's law, F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, लेकिन ये सब स्केलर फॉर्म है, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मींस इस फोर्स के डायरेक्शन को दिखलाना है और इस फोर्स का डायरेक्शन है इस साइड में, और ये जो डायरेक्शन है ये R21 टैब के एलोंग है, दैट इज यहां हमें लिखना होगा R21 इक्वेशन नंबर 1। अब यह फोर्स जो है वेक्टर में है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R2 R12 कैप। अब ये ध्यान दोगे F21 का डायरेक्शन चूंकि ये है और इधर डायरेक्शन दिखला रहा है ये यूनिट वेक्टर R12 कैप, तो हम लिख सकते हैं R12 कैप। और
यहां से क्लियर है कि r12 कैट और चाहे r21 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है चूंकि, तो लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि r12 कैट इज इक्वल टू माइनस r21 कैट। Therefore, this equation second may be written as f21 vector is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square r21 cap. Equation number 3rd. On comparing equation first and equation 3rd, we see that both are same, but difference is as it is in positive form, but it is in negative form. That is, the direction of both forces are in opposite direction. This implies that therefore, from equation first and third, we may write f12 vector is equal to minus f21 vector. यहां से क्लियर है कि Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाता है। दोनों फोर्स की वैल्यू, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। दैट इज कूलॉम्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है। दैट इज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रहा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कूलॉम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ेंगे, तो देखेंगे हम एक कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कंसीडर कर ले रहे हैं हम कि कोई दो चार्जेस हैं, स्पेस में रखे गए हैं। ये पर्टिकुलर दो चार्ज है, यह चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2। यह चार्ज Q1 और यह चार्ज Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर r1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर r2। यहां पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं, यह A है, यह B है और यह ओरिजिन O है। यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। हमें इन दो चार्जेस के बीच फोर्स की वैल्यू निकालना है, लेकिन इस पोजीशन वेक्टर्स r1 और r2 के फॉर्म में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि 1 से 2 की ओर जो यूनिट वेक्टर है यह r12 कैप है, या ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है यह r12 है, और डायरेक्शन भी अगर लेकर के चल रहे हैं तो r12 वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन चूंकि हमें दिखलाना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, और यूनिट वेक्टर लेकर के चलेंगे हम r12 कैप। अब फिगर से हमें क्लियर है, since from vector law of addition, from vector law we know that vector law से लिख सकते हैं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB, या दिस इंप्लाइज एज वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB minus vector OA. Since vector AB is equal to r12 vector, this implies as r12 vector is equal to OB vector, and OB vector is equal to vector r2,
that is your vector r2 minus vector r1. Similarly, modulus of vector r12 is equal to modulus of vector r2 minus vector r1. Since we know that unit vector is equal to given vector upon modulus of that vector, this implies r12 cap is equal to r2 vector minus r1 vector divided by modulus of vector r2 minus vector r1. अब ये सब टर्म्स का हम यूज कर दे रहे हैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब हम लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि F21 वेक्टर दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB, modulus of vector AB means modulus of vector R12 and modulus of vector R12 is equal to mod vector R1 minus R2 minus R1 into R12 cap. R12 cap at the place of R12 cap we may write here vector R2 minus vector R1 are divided by modulus of vector r2 minus vector r. Then finally we can write f21 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r2 minus r1 modulus square into vector r2 minus vector r1. This is electrostatic force between these two charges in terms of position vector, that is vector r1 and vector r2. Similarly we may write electric force on q1 due to q2, that is f12 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon modulus of vector r2 minus r1 का whole square, here r1 minus r2 square into vector r1 minus vector r2. This result for f1. Okay.